Welcome back again. I'm Rajesh Mohan, and in this video, I will talk about RBI Grade B Phase 2 2023. Exam was held on 30th July yesterday, and now it's time for exam analysis and review. I know I'm a late by day. Okay, most channels have already posted, but guys, this year it's not a first-hand experience. So whatever I am providing you, it is based on the discussions of many students who have attempted this exam. So I wanted to make sure that whatever I'm saying or whatever I'm providing, these are basically verified by those students who have attempted. Okay, and I wanted to learn the experience, what they felt in the particular exam. So this particular video is not only about analysis and review, it will also give you insights about what are the things you need to take care for the next year, because this was not the last year, right? The exam will keep happening. So upcoming, what lessons you can learn from this particular exam for the upcoming exam, that will be also talked about in this particular video. Apart from that, how my content have performed, I also provide some paid materials, right? So how those materials have performed, that we will also discuss, and I will also show you what are the things that I have covered. Okay, so let's get started. Just an update. Today is the last day, means 30th July is the last day on which the NABARD courses will be available at old prices. From 1st August onwards, prices will increase by 100 to 200, because there are 2 to 3 courses. For like PIB courses, it will increase by 100 rupees, and for descriptive and full length course, it will increase by 200 rupees. So if you are one who is looking for NABARD Grade A course, you can opt this course. The link has been given in the description, as well as it has been pinned in the first comment box. You can check all the details. If you have any doubt, you can also contact me on Telegram. So these are the 3 courses. Let's get started. So guys, first let's talk about what was the difficulty level of paper, how people felt about different sections, like for paper 1, paper 2, paper 3. See how the paper are conducted. Basically, RBI takes all 3 papers in a single day, which is also one of the tough tasks, because if you see in UPSC civil services, they take it on different days, like one day, one paper only. But here they take all 3 papers in a single day, right? And in the first shift, like in morning shift, what they do, they only take one paper, and that paper is finance management, means paper 3. Okay, in hierarchy order as given in syllabus, it is paper 3, but exam is taken, but in exam it is the first paper that they take. Okay, so finance management आपको morning hours में हो जाता है, then you have paper 1 and paper 3 in the evening hours. ओके, कि इसके बाद ये मॉर्निंग आवर के बाद क्या होता है कि एक शिफ्ट में आपको ब्रेक मिलता है, 1 आवर का आपको ब्रेक मिलता है, एंड देन आफ्टर 1 आवर यू अगेन कम बैक, यू डू ऑल द प्रोसीजर लाइक सिक्योरिटी चेक एंड ऑल. उसके बाद आपका लगातार जो है ये पेपर 1 पेपर 3 सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट होते हैं. मतलब शिफ्ट 2 जो होगा, ओके, शिफ्ट 2 जो होगा उसमें आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 एक साथ कंडक्ट किया जाएगा. ओके, मींस इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू एंड इंग्लिश राइटिंग आपको एक साथ कंडक्ट होता है. तो इन पेपर 1 you have 2 parts, means out of 100 marks you have 2 parts, 50 marks for objective and 50 marks for descriptive, right? That much I hope you all know. Similarly in FM you have 50 marks for objective and 50 marks for descriptive, and in English descriptive you have total 100 marks, and there are 3 such questions. Okay, one is essay, another is précis, and another is reading comprehension. Okay, so there are 3 set of questions for 100 marks. So if I talk about economics and social issue objective, like last year, this year also, it was difficult and confusing. Okay, because they have been asking in, and here in objective you have 30 questions. You have 30 questions, 2 questions of 2 mark, 20 questions of 2 marker, and 10 questions of 1 marker. So that's how 40 marks plus 10 marks is of 50 marks. Okay, so out of these 20 questions, they ask these questions based on some paragraph, some passage. Means a passage is given, a paragraph is given, and based on that 3 to 4 or 4 to 5 questions are asked. This year they have given 5 paragraphs. They have given 5 paragraphs, and on each paragraph there were 4 set of questions. I will show you all the questions, don't worry. Okay, there were 5 paragraphs,
and on all the paragraphs there were 4 set of questions. This time paragraph were with diverse in nature. Like last year it was mostly program, but this year they have also included WTO. WTO was news in last year, means September October में WTO आपको एक सबमिट हुआ था, 12th MC 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, और वहां से उन्होंने जो एक तरह से रेफरेंस लिया हुआ है. ऑल्दो WTO is very much in news and I have been recommending in multiple times, but I was recommending it for descriptive writing because I was expecting a question on descriptive writing, but they have asked in objective section and it was for 8 marks because there were 4 questions, okay, of 2 marks each, so it was for 8 marks. So it was a bit diverse. There was some also question on WTO, sorry, on a report by IMF, World Economic Outlook report published by, and that particular report is specifically mentioned in your syllabus. Now in your, if you will see the phase 2 syllabus, they have specifically mentioned this particular report. So they have asked 4 questions on that also. So it was a bit difficult and confusing in nature, and that's why the average score most people are scoring are around 15 marks, maybe 20 marks, maybe 25, 24. इस तरह से लोगों के scores आपको objective में हो रहे हैं. If I talk about descriptive again, so in descriptive it will be moderate to difficult. Why? Because the 15 marks question, not the 10 marks, the 15 marks question, all the 3 15 mark questions were somewhere related to some old scheme, okay. At the same time 2 of 3 questions were based on some report. Like we cover reports, like I also provide content, but those contents are for objective questions. Like I gave some 1-page content or maybe 1.5-page content for World Development Report, which is published by World Bank, and it was based on migration this time. I'm surprised that this year they have taken 2 reports, and that was, and all those, and both the reports have been mentioned in syllabus. Like they mentioned the World Economic Outlook and World Development Report, World Economic Outlook by IMF and World Development Report by World Bank. They asked objective question on World Economic Outlook and they asked descriptive question on World Development Report. Okay. So World Development Report was based on migration and refugee issue, and they have asked a question on 15 mark question on this particular report. I will show you the question also. So, and that's because if the 50 marks are based on reports that no one has expected, so in that case the paper becomes difficult, okay, moderate to difficult. That's why I have said it is moderate to difficult. Then if I talk about English descriptive, no surprise as such, okay. Like it was surprising last year because they have increased the word limit to 600 words, but this year, as the topics given in essay were also doable, people had prepared for climate change. Like I had recommended 100 times to prepare for climate change, and they had some topics related. So definitely people did not feel any kind of surprise. So English descriptive, I won't say it was difficult. Basic, it was lengthy but doable. Okay. Paper 3, objective, easy to moderate. Many people are scoring 40, 41, 38. So I will keep it easy to moderate. Although there were few questions, like there were 2 paragraph based questions. There were 4 to 5 questions on those paragraphs. They were from 2021. Okay, like there was a RBI circular on corporate governance that was from 2021. But again, some people are saying they have marked correct answers. All the questions have been marked correct in that particular paragraph because somewhere the informations or answers were available in the passage itself. That's what I have been told. I'm not saying this was the case. That's what I have been told. Okay, and that's why people are scoring 31, 38 to 41. Then if I talk about descriptive, it was moderate to difficult. I will show you the question also. Okay, so if I talk about overall exam analysis, so ESI as usual very difficult. Even 1 marks were difficult than phase 1 GA. Okay, said by students. So 1 marker was more difficult than 2 marker. That's what people are saying, that even the 1 marks question are more difficult than the 2 marks question. Okay. Similarly, if I talk about FM, it was easy to moderate depending upon how good you are in management, because this time the weightage of management was higher than finance. Okay, they have asked more and more questions from management. So definitely if you are good in management, which most people are because they keep
preparing for management from start itself. Like this year, they changed syllabus for finance. Like they included 2 to 3 on international finance or few other things. Like they included ratios also. So if they had asked descriptive questions on those topics, or if they had asked questions, more and more questions on those topics in finance, then it could have been difficult. And that's what I was expecting. If they do such kind of things, then it would have made the FM part difficult also, but that's not the case. Okay, they have focused on management itself. So this year also the paper was easy to moderate. Like last year, the average score will be more than 70-75 in the finance management. Okay, and but if I talk about average score in ESI, so it will be around 50-55 somewhere. But here the average score will be 70 plus for sure, 70 to 75. I'm talking about average score. People will be there who will be scoring 80-85 also. You don't be surprised, there will be people, because those who are scoring 40-41 in objective, and if they may have written descriptive well, then their score will cross 80 plus, right? So people will be scoring 80 marks for sure, but I'm telling you that average score will be 70-75. English again, here in RBI, they don't do average marking in English. So here also you can expect 70 plus in English. Okay. So accordingly, if I see 70 plus 70, 140 plus 52. And accordingly, I have kept it in the range of last year. So for general EWS, the expected cutoff could be 175. The expected cutoff, although you need to score 20 marks above expected cutoff, above cutoff to get the final selection, because you are not sure about the interview. In interview, out of 75 marks, few people get even 10, few people get even 75 or 74. So the marks varies from 1 to 75 or 1 to 74. So you cannot be sure about it. So if you are, but if you have done some kind of preparation for interview stage, definitely you can expect 35, 40, 45. In that case, if you are scoring 20 marks above the cutoff, then, and again 40-45 marks in the interview stage, then definitely you have chance to get selected. Okay, so that may be the case. But guys, I just want to make it clear, guessing cutoff in phase 2 is impossible as there are many factors. Okay, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर उन्होंने मार्किंग जो लीनियंट करने वाले मार्किंग टफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट से क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पूछे गए 15 मार्क्स के ईएसआई में, अगर उन्होंने उसे जो है, अब उसमें आपको पता है कि लोगों ने उतना डिटेल में उतना कुछ खास लिखा नहीं होगा, राइट? दे मे हैव रिटन राउंड अबाउट, मतलब उसके आसपास में घूम फिर रहे होंगे, कुछ उस तरह से रिलेट करके लिखा होगा, क्योंकि किसी ने उस तरह से प्रिपेयर किया नहीं होगा, कुछ 1-2 लोगों को छोड़कर 10 लोगों को छोड़कर। तो वैसे केस में अगर वो उस क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से कट टू कट चेक करते हैं, तो वैसे केस में क्या होगा कि फिर तो उसमें मार्क्स मिलेंगे नहीं, और इन दैट केस कट ऑफ में डिक्रीज फर्दर। ओके, ये चीजें आपको फैक्टर इन करना होता है। सिमिलरली एफएम में भी आपको क्वेश्चंस होते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव वो किस तरह से चेक किया था। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव अगर थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में, तो उसकी चेकिंग कैसे होती है ये मैटर करता है। सो ऑल दोज फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एंड देन ओनली आपके कट ऑफ बनते हैं। इसीलिए ये कहना कि 175 लो या 160 या 180 इस तरह से कट ऑफ जाएगा, आई डोंट थिंक इट शुड बी द केस। ओके, बट एक बेंचमार्क होना चाहिए कि ताकि आप अपना फेज 3 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको, आप इंटरव्यू स्टेज के लिए स्टार्ट कर सको। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू वन पर्टिकुलर नंबर। सो इफ यू आर द वन who are in these range 170-175 के अगर रेंज में आप हो, तो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर फेज 3। ओके, इंटरव्यू स्टेज के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। When is the result expected? Result could be expected in August last week probably. Okay guys, so here, okay, let's first show the questions and then so how I performed means how my content performed. It's basically same thing. Okay, because I have been providing content this year, so I want to show you what are the things I provide and how those things have performed. So the first and foremost thing is descriptive. Okay, this year I have been providing descriptive mock test. Descriptive mock test was available at 990 rupees. It also included PIB summary
ओके, तो जनवरी से आपको पीआईबी समरी भी इसमें मिल रहा था. तो इट वाज वन ऑफ द लीस्ट प्राइस descriptive mock test, and I was covering 5 mock tests initially. Later I also covered 3 mock tests. Okay, so and also gave 100 plus descriptive, 100 descriptive. Although this particular PDF was not complete, 60 to 70 questions were provided over here. Okay, मॉडल आंसर्स उसमें से भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, जैसे बिग 5 वाला क्वेश्चंस वगैरह डायरेक्टली आपको मॉडल आंसर्स में दिखता है. आरबीआई के टूल्स हैं वो भी आपको मॉडल आंसर में अवेलेबल है. So this was the descriptive thing. Then I also provided RBI SEBI circulars October 2020 to June 2023. I also covered reports and indices from October to June 2023. Okay. Then there is a newspaper. I have been covering newspaper from April onwards. Okay. April onwards से आपको newspaper cover कर रहा हूँ मैं. Then I also shared schemes compendium apart from PIB summary which I provide on monthly basis. Okay, which covers programs and policies as well as RBI SEBI circulars, reports, indices, agriculture development news, even descriptive related articles, 5 to 6 descriptive related articles, explainer articles. Okay, descriptive questions, objective questions. So apart from that, I also shared a schemes compendium because they ask few flagship programs. Most of the questions in phase 1 exam will be covered from the PIB summary itself. But if you go to phase 2 exam, there they ask some flagship schemes. Okay, and those schemes and the questions that are asked on those particular schemes are bit detailed in nature. I will show you the questions also. So for solving those questions, you need to have some kind of detailed understanding, and for which I have been providing schemes compendium PDF. Okay, जहां पर कि आपको 14 से 15 मिनिस्ट्रीज के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको आपको काफी डिटेल में कवर किया था, और इट हैज हेल्प्ड मेनी स्टूडेंट दिस ईयर. उसके अलावा आई हैव 2 टेलीग्राम चैनल्स. One is directly based on my name. Okay, another for descriptive answer as well as English writing. I would recommend all of you, all those who are preparing for 2024 or NABARD grade A or any regulatory exams, you just need to follow this telegram channel. आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर होते हैं यहाँ पर, और मैं डायरेक्टली टेलीग्राम पर काफी एक्टिव रहता हूँ, वहां पर आप पर्सनल मैसेज वगैरह करते हो. सो आई ट्राई टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज ओवर देयर. सो यू शुड ज्वाइन दिस पर्टिकुलर चैनल. आज को आपको अभी ही इसको चैनल को फॉलो कर लेना चाहिए. ये आपके लिए एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट होगा, एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट फॉलोड टेलीग्राम चैनल है रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए. नॉट सेड बाय मी, मोस्ट पीपल से दैट. Okay, so let's talk about ESI objective. So these are the contents provided by me. What are the future plans? Like from October onwards, October 2023, I will be launching a new batch for 2024 students. This will be full-fledged batch. So not this only mock test or only PIB, only schemes. I will be launching a full course where I will be covering. It will be non-video course, but weekly mentorship programs will be there. आपको हर हफ्ते जो उसमें गूगल मीट सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे ताकि आपके डाउट्स को जो है वो क्लियर किया जाए. सिमिलर कंसेप्ट पर मैं अभी नाबार्ड के कोर्स चला रहा हूँ और वो काफी सक्सेसफुली चल रहा है. तो सेम कंसेप्ट को यूज करके मैं आरबीआई के भी नॉन वीडियो कोर्स चलाने वाला हूँ, और उसके लिए आपको 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती पर जो है आपको ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा. 2 अक्टूबर को ये कोर्स स्टार्ट होगा. ओके, रजिस्ट्रेशन इसके 15 सितंबर से ही स्टार्ट हो जाएंगे, या 10 सितंबर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे. सो अक्टूबर ऑनवर्ड्स यू कैन रजिस्टर फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स आरबीआई 2024 के लिए. And that particular course will cover everything: material, mock, mentorship. I work on 3M concept: provide, material, mock, and mentorship. Okay, so all 3 things will be covered in that particular course. So now let's talk about ESI objective. Okay, first we will talk about the 2 marker question, and then we will talk about 1 mark question. So as I told before, there were 5 paragraphs. On each paragraph there were 4 questions: 1, 2, 3, 4. Okay, so first paragraph is mission life. I don't think anyone would have covered mission life more than me, because each month it have been in news. mission life क्योंकि मोदी जी ने बड़े पैमाने पर इसको लॉन्च किया. इट इज वन ऑफ द ग्लोबल इनिशिएटिव अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अपार्ट फ्रॉम CDRI. Okay, apart from this Maharshi initiative for the millets, this particular mission life initiative is also very important, and these are the 3 to 4 initiatives which government is promoting at a large scale
एट द ग्लोबल लेवल, क्योंकि आपको भारत का इमेज भी आपको बड़ा करना है। और आपने देखा है कि रिसेंटली फॉरेन पॉलिसी किस तरह से इवॉल्व हुई है, तो उसी केस में आपको ये मिशन लाइफ का एक पार्ट है। ओके, लास्ट ईयर, इवन आपको लास्ट ईयर इसी साल, आई गेस इसी साल स्टार्ट में, जो यूनाइटेड नेशंस के आपको सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी है, वो भी आपको आए थे इस मिशन को लॉन्च करने में, और गुजरात में इसको लॉन्च किया था। हालांकि पिछले साल ही 2021 में ही, 2022 में नहीं, 2021 में ही ग्लासगो समिट कॉप 2026 में, राइट, 2022 में कॉप 2027 हुआ था, और वो इजिप्ट हुआ था, राइट, इजिप्ट में आपको केरियो में समिट था कॉप 2027। कॉप 2026 ग्लासगो में होता, और ग्लासगो में पीएम मोदी ने जो है ये घोषणा की थी, जहां पर पंचामृत कंसेप्ट वगैरह था, वहीं पर मिशन लाइफ की घोषणा की गई थी। ओके, तो उस मिशन लाइफ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो वेयर वाज इट लॉन्च, ग्लासगो। अब देखो क्या होता है ना कि जो यहाँ पर पैराग्राफ दिए जाते हैं, जो पैसेज दिए जाते हैं, वो 8 से 10 लाइन के होते हैं, और वो पैराग्राफ में कहीं भी आपको स्कीम मेंशन नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन ही आपको यही होता है कि आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव मेंशन इन द पैराग्राफ, या आइडेंटिफाई द प्रोग्राम, आइडेंटिफाई द रिपोर्ट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली होते हैं। तो वो क्वेश्चन आपका पहला है, तो मिशन लाइफ हो गया। तो कहां पर लॉन्च किया था, ग्लासगो समिट में आपको लॉन्च किया था पीएम मोदी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 7 कैटेगरीज अंदर मिशन लाइफ। अब देखो क्या है ना कि मिशन लाइफ के अंदर 7 टारगेट्स हैं, कैटेगरीज कहने के बजाय 7 टारगेट्स हैं जो इसको अचीव करना चाहती है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। देखो कुछ लोग बोल रहे कि सर ये अलग अलग पीडीएफ में कवर नहीं था, ये चीज नहीं। देखो वहां पर एक ऑप्शन था, 5 में से एक ऑप्शन था प्लांटिंग ट्री। इफ यू हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर स्कीम, तो आपको ये पता होगा कि ये कंजप्शन पर बेस्ड है, कि राइट कंजप्शन। आप अगर देखो कि इसमें 3P का कंसेप्ट है, या जो लोगों की जो लिविंग जो कंजप्शन वगैरह होते हैं उसको एक रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन पर बेस्ड है। रिस्पॉन्सिव कंजप्शन जिसको बोले, या रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन पर बेस्ड ये स्कीम है, कि लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसको बदलना। जो आप एक बार जितना यूज नहीं उसे ज्यादा खरीद लिया, फेंक दिया, चीजें वो वेस्ट कर रहे हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। चीजें सर्कुलर होनी चाहिए। वट एवर वी आर यूजिंग, उसको सर्कुलरली आपको फिर से यूज करने के रीयूजेबल बनाना है, तो उस पर बेस्ड है। इसीलिए यहाँ पर प्लांटिंग ट्री का कंसेप्ट नहीं है, ये ग्रीनरी पर फोकस नहीं कर रहा है। बेसिकली ये आपको फोकस कर रहा है कंजप्शन, रिस्पॉन्सिव कंजप्शन पर फोकस कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपको मार्क कर सकते थे। इस तरह से भी आप सोच के, लॉजिकली सोच के इसको मार्क कर सकते हैं। हालांकि ये कवर्ड है। देयर वाज अ टेबल मैचिंग क्वेश्चन ऑन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोग्राम। तो ये मैंने क्वेश्चन एग्जैक्ट मिला नहीं, तो आई होप इसको कवर नहीं किया होगा, तो ये नॉट कवर्ड में इसको रखेंगे। तो आई हैवंट कवर्ड दिस थिंग। तो 3 कवर्ड है, बाद बाकी नहीं है। WTO का मैंने लास्ट ईयर कवर किया था। कहां पर, जब 12th MC कंडक्ट हुआ था, मिनिस्ट्रियल समिट कंडक्ट हुआ था, और तो वहां पर इसको काफी बड़े पैमाने पर कवर किया गया था। ओके, और WTO इस बार काफी न्यूज में था। दैट्स व्हाई आई वाज एक्सपेक्टिंग अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन WTO, क्योंकि काफी सारे अभी भारत और यूनाइटेड इंडिया, EU हो गया, इंडिया US, और भी कई सारे डिस्प्यूट्स वगैरह काफी आए। इवन जो WTO के जनरल सेक्रेटरी है, डायरेक्टर जनरल है, वो भी आपको भारत के दौरे पर थी। तो ये चीजें आपको काफी न्यूज में बना हुआ था, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था WTO पर। और मैं बार बार इसको रिकमेंड भी करा था। इवन आई हैड शेयर्ड माय वन ऑफ माय PDF जो कि 12th MC पर बेस्ड था, और मुझे लगता था कि 12th MC पर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से लोगों को हेल्प मिलेगी। तो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर PDF यू कुड हैव आंसर्ड ऑल द 4 क्वेश्चन। So here also all the 4 questions are covered. Here 3 questions are covered. I have shared, I will show you all the PDFs, और मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर जो ये चीजें शेयर कर रखी है, सबूत के लिए सारा कुछ अवेलेबल है। देन देयर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये तो सब लोग कवर करते हैं। इसमें आप देखो, इसमें डाटा फैक्ट्स कितना याद रहता है। और चूंकि आपको यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया हुआ था, उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन से स्कीम से, कौन से रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। दैट्स अनदर चैलेंजिंग टास्क। ओके, वंस यू आइडेंटिफाइड दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, उसके बाद कुछ ज्यादा नहीं रह जाता है। द मोस्ट डाउंटिंग टास्क फॉर स्टूडेंट इन दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन, क्योंकि टाइम आपको फिक्स है 30 मिनट्स, और उस कंडीशन में आपको ये मोस्ट डाउंटिंग टास्क क्या होता है कि ये बड़े वाले पैराग्राफ को पढ़ के उसको फिर आइडेंटिफाई करना कि कहाँ से यह प्रोग्राम पूछा गया है, कहाँ से रिपोर्ट है, कौन सा प्रोग्राम है। That's I think daunting task. But if someone would have figured out, then फिर आपको इस पर क्वेश्चन जो है इजी थे, जैसे कि आइडेंटिफाई पैराग्राफ, रिपोर्ट, प्रोजेक्शन फॉर एडवांस इकोनॉमी कवर्ड, सम डाटाबेस। ये तो पूरा बाउंसर था, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। आई होप सबने छोड़ दिया होगा, तुक्का मारने का यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं रहता इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ये काफी डिफिकल्ट था। 3 क्रिटिकल मिशंस ऑफ IMF, ये आप गैस कर सकते थे। ओके, एलिमिनेट वगैरह, क्योंकि यहाँ पर डाटा फैक्ट्स नहीं रहता है। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि तुक्का वैसे ये गैस जो एलिमिनेशन या गैस वर्क वैसे क्वेश्चन में करना चाहिए। जैसे इस तरह के क्वेश्चन हुए, कौन से मिशन नहीं है,
तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप जो है एलिमिनेशन यूज कर सकते हो, नॉट गैस। एक तरह से इंटेलिजेंट गैस बोलते हैं, एलिमिनेशन का तरीका यूज करके आप इसको लगा सकते थे। तो ये क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो 3 क्वेश्चन यहां से भी हम लोग लेकर चलेंगे। ट्रैवल ग्रुप्स पीवीजीटी, यहां से हम लोग 0 लेकर चलेंगे। ये तो पूरा पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन पूछा है। हालांकि मैं ट्रैवल्स रिकमेंड कर रहा था काफी टाइम से, जब से प्रेसिडेंट मुर्मू द्रौपदी मुर्मू जी हैव बिकम द प्रेसिडेंट, आई हैव बीन रिकमेंडिंग ट्रैवल्स ऑन अ लार्ज स्केल। ओके, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर पूछ सकते हैं, यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन वो पूछ नहीं रहे थे। आजकल लगातार जो एग्जाम हो रहे थे उसमें किसी उन्होंने पूछा नहीं, तो देन आई स्टॉप रिकमेंडिंग। चलो यार, फिर भी मैं ट्रैवल्स को अच्छे तरीके से कवर करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स को मैं कवर करता हूँ, या उसके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं कवर करता हूँ। लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछा है वो थोड़ा हटकर पूछा है। वो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन जो है आप दिमाग लगाकर कर सकते थे, और वो था बजट से उन्होंने कनेक्ट किया था, पीवीटी। बेसिकली पीवीटीजी क्या होता है कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्रैवल ग्रुप्स। ओके, ये आप ग्रुप्स होते हैं, ट्रैवल्स के अंदर एक ग्रुप होता है, जैसे नोमैडिक ट्रैवल्स होते हैं, नॉन नोमैडिक ट्रैवल्स होते हैं, वैसे ही पीवीजीटी होते हैं, तो टीजी होते हैं। तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आप पहला वाला क्वेश्चन कहीं आप दिमाग लगा कर सकते थे। बाद बाकी क्वेश्चन आई डोंट थिंक यूपीएससी स्टूडेंट जो है, जो इसके ज्यादा पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर वगैरह में इन चीजों को ज्यादा पढ़ते हैं, वो लोग में भी इसको ट्राई कर सकते थे, दे कुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चंस। Then there is national database for unorganized workers. E-Shram portal was not mentioned. Only the paragraph was on national database for अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ये मैंने स्कीम्स कॉम्पेंडियम पीडीएफ जो मैंने अभी दिखाया आपको, पीआईबी के साथ शेयर होता है, वो उसमें मैंने कवर किया होता है। स्कीम्स कॉम्पेंडियम में ये कवर हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत ये कवर हुआ था। हाउ मेनी वर्कर्स आर इनरोल्ड। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बस आपको उस पीडीएफ से कवर कर सकते थे। बाद बाकी क्वेश्चन क्या है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि रिसेंटली ये जो वेबसाइट है NDUW जो है, ये इंटीग्रेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और कौन से ऑर्गेनाइजेशन के ऐप के साथ। मतलब कि पहले तो आपको ये है कि नेशनल डाटाबेस फॉर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो है वो किसी एक ऐप के साथ इंटीग्रेट किया गया, और वो ऐप का नाम है बेसिकली उमंग। दिया हुआ नहीं था, आपको खुद पता करना था। मतलब करंट अफेयर से क्वेश्चन था ये, तो उमंग के साथ कनेक्ट हुआ है, इंटीग्रेट हुआ है। अब आपको ये पूछ रहा है कि चलो ठीक है, आपने फिगर आउट कर लिया उमंग है, बट दैट्स नॉट द, देयर इज नो प्राइज फॉर दैट। नो दे आर आस्किंग that Umang app was launched by Ministry of Electronics and Information Technology and one another organization। मतलब ऐप को डेवलप जो किसने किया है ये पूछ रहे हैं, तो वो बेसिकली नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने किया था। ये क्वेश्चन तो फिर भी एक बाउंसर मानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कैन बी एक्सेस्ड। यहाँ पर भी आप जो है गैस मतलब एलिमिनेशन लगा सकते थे, बट नहीं कवर किया, अलग ये भी नहीं कवर किया है। तो इसमें भी से बस एक क्वेश्चन वो भी आएगा। ओके, हालांकि बजट मैंने कवर किया था, लेकिन अब पता नहीं आप लोग उसको वहां तक पहुंच सको तो ठीक है, बाद बाकी ये सब तो नहीं ही हो पाएगा। जैसे मैंने बोला कि 1 मार्कर्स जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन था सॉवरिन गोल्ड पर, ये कवर किया हुआ है। पीएम स्कॉलर स्कीम नहीं कवर किया है। केस स्टेडियम जन औषधि कवर किया हुआ है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम कवर किया हुआ है। सुधार गृह कवर किया हुआ है। बाद बाकी क्वेश्चंस मिले नहीं, तो इसलिए मुझे पता नहीं। ओके, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन। गाइस, कवर करने का मतलब ये नहीं है कि आप भी वहां पर आंसर करें। मैं ये बता रहा हूँ कि इसको मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ। अब एग्जाम में याद आना भी एक बड़ी बात होती है। ओके, वो अलग मैटर होता है। एफएम प्रोग्राम से 1 मार्क्स के लिए पीएम जनधन योजना, यस जीवन, ये तो सब लोग कर गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो मैंने बार बार रिकमेंड किया हुआ है, और मैंने बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आप क्वेश्चन जो है काफी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड दे हैव बीन आस्किंग सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड या ये जनधन योजना वगैरह, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कहलाते हैं। These are called सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस पर क्वेश्चंस वो लोग पूछते रहते हैं। नो, अब डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। वी विल स्टार्ट विद एफएम डिस्क्रिप्टिव। सो एफएम डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले 10 मार्क्स। सो बेस्ड ऑन ओएनडीसी एंड हाउ इट विल इंपैक्ट बिग कॉर्नर्स। तो मैं 3 से 4 जो है प्लेटफॉर्म के बारे में हमेशा रिकमेंड करता हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए था। वन सच प्लेटफॉर्म वाज सीबीडीसी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई। इसी के अंतर्गत अब आधार, हेल्थ स्टेक, अभीम जो अभी आप देख रहे हो, एबीडीएम जो देख रहे हो आप, ओके, जहां पर आत्मनिर्भर भारत डिजिटल मिशन है, एबीडीएम, यूपीआई, आधार, जेम ट्रिनिटी, सब इसी के अंतर्गत आता है। डीपीआई, और भारत सरकार इसको ग्लोबल लेवल पर प्रमोट कर रहा है।
डीपीआई को भारत सरकार ग्लोबल लेवल पर प्रमोट कर रहा है, ये ध्यान रखना। ये काफी न्यूज में था, इस पर मैंने आर्टिकल जो एक रात पहले भी डाला था। सीबीडीसी आरबीआई इस पर काफी बड़े पैमाने पर डिस्कशन कर रहा है, आगे आपको इंटरव्यू में इस पर काफी क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। ओएनडीसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो इसको काफी बड़े पैमाने पर प्रमोट कर रहा है, क्योंकि इट इज सीन एज द अनदर यूपीआई मोमेंट फॉर इंडिया। ओएनडीसी सीन एज अनदर यूपीआई, और मैंने इस पर 8 से 10 आर्टिकल न्यूज़पेपर में भी शेयर किया था, क्योंकि बार बार न्यूज में है, और इसको मैंने पीआईबी में भी काफी बड़े पैमाने पर कवर किया हुआ है, रिपीटेडली कवर किया हुआ है। इस पर मैंने आर्टिकल्स भी आपको डिस्क्रिप्टिव में शेयर किया था फेज 1 एग्जाम के रिजल्ट के बाद। आप देखोगे 8 से 10 दिन पहले रिजल्ट फेज 1 एग्जाम के रिजल्ट के बाद मैंने 8 से 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टेलीग्राम पर शेयर किया था, उसके कटिंग शेयर किए थे, और उसमें से एक ओएनडीसी भी था, तो ये आपको यहाँ पर है। ओके, उसके अलावा ये डिस्क्रिप्टिव चैनल है, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया कि डिस्क्रिप्टिव बैंक एग्जाम करके, यहाँ भी आप देख सकते हैं, आपको नीचे में लिंक आईडी दिया हुआ है, ये आईडी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के रिगार्ड्स में। तो जो मैं मॉडल आंसर्स वाला पीडीएफ बताता हूँ, वहां से आप देखो पर्सनैलिटी वाला क्वेश्चन जो है 15 मार्च में बिग 5 वाला ओशियन मॉडल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनैलिटी ऑफ लीडर, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया 15 मार्च का, यहाँ पर 600 वर्ड्स में ही दिया हुआ था। ओके, तो ओशियन मॉडल बेसिकली यही है, बिग 5 मॉडल ही है। और विच पर्सनैलिटी टाइप्स इम्पैक्ट बिहेवियर, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा था, तो वो आप वहां से कर सकते थे, और मैंने हमेशा बोला है कि एग्जाम्पल्स वगैरह इंक्लूड कर रहे हैं तो उससे आपको काफी मार्क्स मिलते हैं। हेनरी फ्यूल कवर्ड है, हेनरी फ्यूल आपको फर्स्ट चैप्टर में ही आता है, हेनरी फ्यूल को प्रिंसिपल्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे चैलेंजिंग टास्क था कि उन्होंने पूरा एग्जाम में मेंशन कर दिया था कि 14 प्रिंसिपल, तो मैक्सिमम लोगों को 14 प्रिंसिपल याद नहीं आ रहे थे, 7, 6, 7, 8 इस तरह से याद आ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को 14 प्रिंसिपल याद है, तो उन्होंने जो है इसको किया हुआ है। मैंने इसे डिस्क्रिप्टिव में करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत ये चीज आपको कवर कराया है। रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ये आपको आरबीआई सर्कुलर में कवर है, लेकिन इतना कवर नहीं है कि आप 600 वर्ड लिख सको, क्योंकि ये प्रोग्राम आपको 2021 में ही लॉन्च हुआ था, मोदी जी ने लॉन्च किया था। ओके, तो उस टाइम पर से ये प्रोग्राम है, उसको उन्होंने रिसेंटली पिक किया है। अब देखो यहाँ पर एक लर्निंग क्या आती है, लर्निंग ये आती है कि आपको आरबीआई के जितने भी मार्की स्कीम्स है, लाइक अभी उन्होंने सीबीडीसी नहीं पूछा इस साल, तो ये मत सोच लेना कि सीबीडीसी आप नहीं पूछेंगे, अगले साल सीबीडीसी पूछ सकते हैं। इस साल उन्होंने जो है जो नए टॉपिक्स उन्होंने इंक्लूड किए उस पर नहीं पूछा, तो मे बी नेक्स्ट ईयर जरूर पूछेंगे। तो ये चीज जरूर होना चाहिए कि जो मार्की प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ये रिटेल डायरेक्ट वगैरह काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, सीबीडीसी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये चीजों को आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही वो 2 साल पहले का हो, 3 साल पहले का हो। सिमिलरली जो आपके सब्जेक्ट है, जो आपके चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, इस सब के जो इंपॉर्टेंट और मार्की सर्कुलर्स होते हैं, इस सब के जो इंपॉर्टेंट मार्की सर्कुलर्स होते हैं, उसको आपको ये सोच कर नहीं छोड़ना चाहिए कि वो 2 साल पुराना है या 1 साल पुराना है। आपको उन सर्कुलर्स को कवर करना पड़ेगा, एज ए स्टैटिक कवर करना पड़ेगा, आपके सिलेबस के अंदर कवर करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखें। सिमिलरली कुछ कमिटीज बनते हैं, वो कमेटी भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भले वो पुरानी हो गई, वो कमेटी आपको देखना पड़ेगा, अगर वो आपके सिलेबस से रिलेट करता है तो मार्की कमेटी भी आपको देखने पड़ेंगे। तो दीज आर द लर्निंग्स बेसिकली आरबीआई देना चाहती है, तो मुझे लगता है कि ये सबको ध्यान रखना चाहिए। ये कोड ऑफ कंडक्ट वाला क्वेश्चन था, एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये मैंने कवर नहीं किया है कहीं पर भी। यूपीआई इट्स रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन और ऑल्सो यूपीआई क्रेडिट कार्ड वगैरह बंद था, ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव में फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड टेक्नोलॉजी, यूपीआई ये सब कवर किया गया था। बट ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसको डायरेक्टली कहीं भी कवर नहीं किया गया था, ये क्वेश्चन को उन्होंने मिक्स ऑफ क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर उन्होंने पूछा है। इफ आई टॉक अबाउट, सॉरी ये ईएसआई डिस्क्रिप्टिव है, इफ आई टॉक अबाउट ईएसआई डिस्क्रिप्टिव, देन द 15 मार्क्स क्वेश्चन करेंसी एंड फाइनेंस, अगर दिखाऊं तो करेंसी एंड फाइनेंस, देखो पहला ही चीज था क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस, ग्रीन फाइनेंस, व्हाई सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, आरबीआई करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट बेस्ड ऑन क्लाइमेट फाइनेंस था। ये मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, ऐसे वाला सजेशंस में था। मैंने ये भी लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज पर क्वेश्चन आएगा और कॉपी द इंट्रोडक्शन ऑफ ए क्लाइमेट रिलेटेड एसे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। अब देख सकते हैं ये ऑलरेडी अवेलेबल है, 10 दिन बाद पहले की बात है, ये जैसे लिखा गया है, और मैंने ये लिंक दिया हुआ है जहां से मैंने बोला है कॉपी पेस्ट कर देना, क्योंकि आरबीआई के वेबसाइट से वो है पूरा इंट्रोडक्शन, तो आपको खुद सोचने की जरूरत नहीं, याद करके जाओ, वही इंट्रोडक्शन पेस्ट करना, मस्त मार्क्स आएगा, ये मैंने बोला हुआ है। ओके, सिमिलरली आपको जो मैं आरबीआई सर्कुलर वाला पीडीएफ मैंने दिया था,
उसमें ये डायरेक्टली काफी डिटेल में कवर है, ये जो क्लाइमेट चेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट उसको कवर किया हुआ था उसके। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन क्या था कि आरबीआई करेंसी फाइनेंस रिपोर्ट जो है उन्होंने दिया हुआ था और इस पर उन्होंने 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब दोनों क्वेश्चन आपको, ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन हुआ, ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन हुआ। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में मार्क्स बेटे इस तरह से होता है। तो अब आपको पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 सिग्निफिकेंट इवेंट दैट लेड टू ग्लोबल कंसेंसस ऑन क्लाइमेट चेंज। पहला क्वेश्चन ये है, तो आपको 7.5 नंबर में ऐसे 3 इवेंट्स के बारे में बात करना है। जैसे कि आपको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, उससे पहले आपको अर्थ समिट हुआ था, या कोपेनहेगन समिट से दे सकते हैं आप, अर्थ समिट मेंशन कर सकते थे 1992 वाला। ओके, देन देयर इज पेरिस एग्रीमेंट व्हिच वाज अनदर मार्की इवेंट। कॉप 26 भी आप मेंशन कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो है नेट जीरो के बारे में डिस्कशन हुआ और नेट जीरो के बारे में सहमति बनी है। मेजर नेशंस ने आपको नेट जीरो इंक्लूडिंग इंडिया, नेट जीरो के बारे में उन्होंने जो है प्लेज लिया हुआ है। तो ये आप मेंशन कर सकते थे, इवेंट के बारे में मेंशन कर सकते थे, सब कवर्ड है ये सब। लेकिन वहां पर आपको ये क्लिक करना चाहिए, अगर ये चीजें आपको क्लिक कर रही है तभी आप इसको लिख पाते, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है। इट ऑल्सो Ask another question, it also मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। आपको मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक जब बात करते हैं तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, ओके, दीज आर द मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो का मतलब हुआ पूरे देश भर में, ओके, कि एज अ होल क्या इम्पैक्ट होगा, नॉट वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एज अ होल क्या इम्पैक्ट होगा। आप देख रहे हो ना क्लाइमेट चेंज के कारण ही आजकल फ्लड आ रहे हैं, किस तरह से। पंजाब में कभी फ्लड नहीं आया था तो पंजाब डूब गया, दिल्ली डूब गई। ओके, तो जब इस तरह के फ्लड या डेवास्टेटिंग, या आजकल देख रहे हो आपको किस तरह से भूकंप वगैरह कितने फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, सुनामी वगैरह आ रहे हैं, तो ये चीजें जब होती है तो इससे आपको पॉवर्टी क्रिएट होता है, क्योंकि लोगों के सामान जो है, जो लोग एक तरह से बसे हुए थे वो एक तरह से बर्बाद हो जाते हैं, तो वो एकदम से पॉवर्टी में घुस जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि माइग्रेशन बढ़ जाता है, लोग एक दूसरे से माइग्रेंट हो जाते हैं। ओके, तो दूसरे जगह जाना पड़ता है, फिर वहां सेटल होना पड़ता है, तो माइग्रेशन का क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा वुमेन एक तरह से इशू रहता है, इनइक्वलिटी का इशू होता है, क्योंकि जब भी इस तरह की चीजें होती है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। मोस्ट इम्पैक्टेड वही होते हैं, महिलाएं और बच्चे होते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप में डिस्कस कर सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ओके, तो वो चीजें आपको, अब मान लो साइक्लोन आ गया, 15-15 दिन तक लोग बेरोजगार है, जो आपको दिहाड़ी पर जीवित रहते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर होती है। Then there is another question that was on World Migration Report. How migration can bring prosperity together for the world and suggest recommendation from the report. So report was covered for objective, but they asked in descriptive. अब देखो मैंने कितना ज्यादा रिपोर्ट कवर किया, ये भी दिखा देता हूँ कि अमाउंट ऑफ कंटेंट क्या था। तो ये है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, माइग्रेंट, रिफ्यूजी एंड सोसाइटीज। ये रिपोर्ट मैंने यहां से स्टार्ट किया और ये कंटेंट आपको अवेलेबल है, आप खुद देख सकते हैं कि रिकमेंडेशंस टू प्रमोट माइग्रेशन, ये भी मैंने कंसिडर किया है। व्हाट आर द चैलेंजेज इन दिस रिगार्ड, क्या क्या चैलेंजेज है वो भी आपको यहाँ डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ आपको इस रिपोर्ट का लिंक भी आपको दिया हुआ है, और ये पीआईबी में हर मंथ कवर होता है। ये पीआईबी में हर मंथ कवर होता है, कुछ स्पेशल नहीं किया गया, एग्जाम टाइम नहीं, आपको हर महीने पीआईबी में इस तरह से ही कवर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, तो आपके लिए उतना कंटेंट था, लेकिन मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्टिव 600 वर्ड लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा लोगों के लिए, बट फिर भी मान के चलेंगे कवर्ड है ये 1 2। ओके, और तीसरा फिर जेंडर इक्वलिटी, ये किसी ने कवर नहीं किया। ये बेसिकली एक रिपोर्ट है, यूएनडीपी का स्ट्रेटेजी है, अक्टूबर 2022 में ये स्ट्रेटेजी आया था, जो आपको जेंडर इक्वलिटी पर स्ट्रेटेजी था। ये मुझे नहीं लगता किसी ने कवर किया है, ना तो यूपीएससी के वेबसाइट्स ने किसी ने भी कवर इसे नहीं किया है। तो ये एक कंप्लीट शॉकर था। ओके, और यही मैं बोल रहा था कि ईएसआई में जो है आपको ये इशू आ सकता है, क्योंकि आउट ऑफ 3 क्वेश्चन ये तो मान लो एकदम से कंप्लीट आउट ऑफ द बॉक्स है, लोग इसको घुमा फिरा कर लिखे होंगे। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, ये अगर मान लेते हैं कि लोगों ने लिख भी लिया, ओके यस लेट सपोज लोगों ने लिख भी लिया, तो ये दोनों क्वेश्चंस में लोगों के पसीने छूट जाएंगे, ये दोनों क्वेश्चंस में लोगों के पसीने पक्का छूट जाएंगे। ये चीज मेरे से लिख के ले लो। तो ये चीज एक इशू होगी, किसी ने डायरेक्ट पॉइंट नहीं लिखा होगा, घुमा फिरा कर लिखा होगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जो है आपको कट ऑफ पर इसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चंस को लिखना।
इतना आसान भी नहीं है। बोलने को तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से पूछ दिया मेरे कंटेंट से, बट इतना आसान नहीं होता है आपको रियल एग्जाम में इन पर चीजें लिखना। हाँ, 10 मार्कर्स ठीक थे, 10 मार्कर्स पर लोग लिख सकते थे। जैसे कि आरबीआई के बारे में आपको था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स ब्रीफली डिस्क्राइबिंग 8 टूल्स। आपको आरबीआई के 2 टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव टूल्स में भी आपको 5-6 हैं, क्वांटिटेटिव में 2-3 है। तो उसको आपको 8 टूल्स को आपको यहाँ पर मेंशन करने थे, उसके बारे में लिखने थे। कवर किया हुआ है, देख सकते हैं आप आरबीआई के टूल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है मॉडल आंसर का। एनुमरेट 3 पॉवर्टी एंड 3 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब देखो ये उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है, काफी टाइम से मैं बोलता था कि ये वाला पॉवर्टी वाला स्कीम्स पूछना चाहिए, पॉवर्टी स्कीम्स पूछना चाहिए, बट पूछ नहीं रहे थे। इस बार पूछ लिया उन्होंने। ओके, ये तो इजी क्वेश्चन है, सब लोगों ने लिखा होगा, क्योंकि मनरेगा वगैरह स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना, पॉवर्टी के रिलेटेड काफी सारे स्कीम्स है। लोग इतने सारे स्कीम्स पढ़ के आते हैं, सो डेफिनेटली दे वुड हैव रिटन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो स्कीम्स का अगर क्वेश्चन पूछा गया है, अब देख सकते हो कि उन्होंने डायरेक्टली अब यहाँ पर लास्ट ईयर नबार्ड में 25 मार्क्स का आपको स्कीम था। इवन आरबीआई भी यहाँ पर 10 मार्क्स का स्कीम पूछ चुकी है। ओके, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, रिटेल डायरेक्ट स्कीम वन ऑफ द स्कीम है। इवन फाइनेंस यूपीआई वगैरह भी एक स्कीम है, तो वहां से ओएनडीसी भी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ये स्कीम चलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 20-25 मार्क्स का स्कीम यहाँ पर भी अब पूछा गया है। ओके, ओवरऑल तो ये आप कह सकते हैं कि स्कीम्स का वेटेज और भी बढ़ चुका है। एक और लर्निंग है कि डू नॉट इग्नोर स्कीम्स। ओके, तो व्हाट आर द लर्निंग्स बेसिकली, व्हाट आर द लर्निंग्स बेसिकली, लर्निंग्स क्या है? लर्निंग्स यही है फेज 2 एग्जाम या फेज 1 एग्जाम के लिए, इंक्लूडिंग जीए, कि आप कुछ चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वो है पीआईबी, और आपको थोरोली पढ़ना पड़ेगा, कुछ इधर उधर से 2-4 लाइन। अब देखो, जब मैं पीआईबी की बात करता हूं तो पीआईबी में बस ये नहीं, देखो पीआईबी में बस रेफरेंस दिया होता है, कंटेंट आपको उसके रिलेटेड पढ़ने होते हैं, जितना पॉसिबल है डिटेल में उसके पढ़ने होते हैं। पीआईबी में आपको कंटेंट नहीं मिलता है, पीआईबी में आपको रेफरेंस मिलता है। तो बात बाकी आपको खुद जो उसको उसके रिलेटेड चीजें पढ़नी होती है। देन देयर इज आरबीआई एंड सेबी सर्कुलर्स। यह आरबीआई के सर्कुलर्स के साथ साथ स्कीम्स भी, आरबीआई के सर्कुलर्स, आरबीआई के स्कीम्स, कमिटी ये सब आपको करने हैं। सेबी के सर्कुलर्स ये आपको करने हैं। उसके अलावा रिपोर्ट्स में आपको इंटरनेशनल वाले कुछ यूनाइटेड नेशंस के जैसे, और ये मैंने काफी बार बोला हुआ है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, नीति आयोग। मेरी राइटिंग ठीक नहीं है, आप लिख लेना, मैं मार्कर आज यूज नहीं कर रहा हूं, उसको मुझे निकालना पड़ता। वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी दिया हुआ है। यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएनएस्केप, ESCAP। ये कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होते हैं जो आपको पब्लिश होते हैं। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट आपको क्लियरली करने होते हैं। ये तो हो गया, आपको करना ही करना है। उसके अलावा आपको स्कीम्स भी करने होते हैं। स्कीम्स आपको कुछ मिनिस्ट्री वाइज करने होते हैं। स्कीम्स कहां से करने होते हैं? कुछ मिनिस्ट्री वाइज फ्लैगशिप स्कीम्स वगैरह करने होते हैं, जो आपको पूछा जाता है। उसको थोड़ा सा डिटेल में करना होता है। डिटेल मतलब गाइडलाइंस पीडीएफ आते हैं, वहां से करने होते हैं। ऑलरेडी ये मैंने कवर किया हुआ है, तो आपको वो सब चीजें मिलती रहेंगी। गाइडलाइंस पीडीएफ से करना होता है, क्योंकि उस तरह के डिटेल आपको क्वेश्चन, जैसे कि मिशन लाइव पर आपने देखा, तो उन्होंने वो जो 7 टारगेट्स हैं वो गाइडलाइंस पीडीएफ से उन्होंने उठाकर पूछे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको गाइडलाइंस पीडीएफ से ही मिलते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट द लर्निंग। अब उसमें अगर हम लोग बात करें फाइनेंस मैनेजमेंट में क्या लर्निंग है, फाइनेंस मैनेजमेंट में लर्निंग यही है कि मैनेजमेंट को आपको जो है अच्छे से करना पड़ेगा, डिटेल में करना पड़ेगा, बिना कुछ छोड़े हुए, विदाउट लिविंग। बिकॉज इन मैनेजमेंट दे हैव आस्क्ड इन लेडर थिप रेवन थ्योरी पूछा गया, और रेवन थ्योरी किसी ने नहीं किया हुआ है। लिटरली काफी जितने भी समरी वगैरह देखते हो आप, वहां पर रेवन थ्योरी को मुझे नहीं लगता किसी में अवेलेबल था। इस बार से सब लोग करना स्टार्ट करेंगे, और इस पर टोटल 5 क्वेश्चन थे, 8 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो वो एक तरह से रेवन थ्योरी जो आपको, हालांकि लोग उसको गैस कर पाए और सही हुआ है काफी लोगों का, तो रेवन थ्योरी था। तो डिटेल में करना पड़ेगा, काफी अच्छे से आपको करना पड़ेगा। तो सी अल्टीमेटली व्हाट दे वांट, दे डोंट वांट यू टू प्रिपेयर फॉर, they don't want someone who have prepared for 15 days or 20 days to get selected.
they are looking for people who have done some kind of 6 month preparation or have clear cut understanding. देखो एक होता है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं, आप चीजों को समझ पा रहे हो, आप चीजों को आत्मसात कर पा रहे हो, आप चीजों को एक तरह से फील कर पा रहे हो, चीजों को आप रिलेट कर पा रहे हो. दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. ओके, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग सम रोबोट्स जिसने याद कर लिया हो. दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग समवन जो कि बस कंटेंट पढ़ता है और खुश रहता है, जो कोचिंग के मटेरियल्स पढ़ के खुश रहता है. नहीं, आप चीजों को कितना रिलेट कर पा रहे हो, चीजों को आप किस तरह से दूसरा अपना नजरिया कितना बिल्ड कर पा रहे हो, वो चीजें मैटर करती है. और ये मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, यही चीजें आपको ध्यान रखनी होती है. Okay, so that was all from my side. So I already said these are the information that I wanted to give. So thank you very much once again. We'll see you in the next video, NABARD grade A. That will be on a study plan. Thank you very much once again.